হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমাদের ফার্স্ট রিয়াকশন ভিডিও হচ্ছে একজন পাকিস্তানি পডকাস্টার, তার নাম হচ্ছে দানিয়াল শেখ। তো তার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে এসেছিল কেহকেশান নামে একজন মেয়ে, যে বাংলাদেশে একটা গার্মেন্টস কোম্পানিতে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে জব করছে। তো সে গত বছর ঈদের ছুটিতে সে পাকিস্তানে গিয়েছিল, তো সেখানে সে এই পডকাস্টের শোতে এসেছিল। তো সেই শোতে সে তার বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শেয়ার করেছে। বেশ লম্বা একটা ভিডিওর উপর রিয়াকশন দিব, এবং আমার রিয়াকশন চ্যানেলে জাস্ট রিয়াকশন হবে না, সাথে সাথে রিভিউ হবে। আর যেহেতু এখানে মিডিয়াম হিসেবে উর্দুতে কথা বলা হচ্ছে, যেহেতু আমি হালকা পাতলা কিছু উর্দু বুঝি, তো আমার চেষ্টা থাকবে আপনাকে উর্দুটা কিছু ট্রান্সলেট করে বলা, সাথে সাথে আমার কিছু রিভিউ দেওয়া। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগবে, এবং এজ এ বাংলাদেশি হিসেবে যখন আমার বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলছে ওর ব্যাখ্যাটা আমি শুনবো, এবং আমি কি ফিল করি সেটা আপনার সাথে রিয়াক্ট করবো। তো দেরি না করে চলেন রিয়াকশন ভিডিও চলা যাক। অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনারা যারা প্রথম আসছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার জন্য খুবই মোটিভেশনাল হবে বিষয়গুলো, এবং আমাকে মোটিভেট করবে। তো আমি আপনাদের থেকে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রিপশন অবশ্যই চাই, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। চলেন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। ভিডিও শুরু হয়নি, শুরু হচ্ছে। स्किल सेट है ना वो पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रांग है एंड बांग्लादेश को एहसास है इस बात का। बांग्लादेश में काम थोड़ा स्लो होता है इन जनरल। पीपल आर लेड बैक स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेज में। क्राइम मेरे एक्सपीरियंस में और जहाँ तक मैंने देखा है এই মেয়ে কি বাংলাদেশের বদনাম করবে? দেখি আসলে কি করে না করে। कराची के आगे बहुत कम है। इट्स अ लॉट सेफर। मैं ট্রাফিক জ্যামও চলে আসছে। Shit. रात को 11 बजे भी जिम से अपने जिम के कपड़ों में पैदल घर आ जाती हूँ एंड मुझे इतना सा भी डर नहीं लगता। नो 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 नो। গান চলতেছে, গান শোনা যাবে না। এই ডানিয়েল শেখ অনেক কিছু নিয়ে রিয়াকশন করে, সরি পডকাস্ট করে। কারণ আমাদের ভিডিও শুরু হয়ে গেছে। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, एक वालेकुम और अस्सलाम। कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ाक कर कंट्रोवर्शियल। रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट ये है कि हमें, मैं अक्सर व बेशतर बात करता हूँ कि हमें बात करनी है अब एके की। एका मतलब दोस्ती, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब मेरे सामने जो खातून मौजूद है मेरी एक दोस्त हैं, पुरानी दोस्त हैं, कराचीआइट हैं। वो ढाका में एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करती हैं, पहले वो कराची में काम करती थी। अब वो ढाका क्यों गई कराची से, और इस सारी এই जर्नी ভিডিওটা প্রায় 38 মিনিটের। অবশ্যই আমি এক ভিডিওতে আসবে না, ভিডিওতে 3টা পার্ট থাকবে, এবং আশা রাখবো আপনারা সবাই 3টা পার্ট দেখবেন, এবং প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন, এবং আমার পরবর্তী যে পার্টগুলো আসবে এগুলো দেখার ইনভাইটেশন রইলো। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে, আর আমি চেষ্টা করব কিছু কিছু ট্রান্সলেট করে রিয়াকশন দিয়ে রিভিউ করা। के हवाले से, पूरे सफ़र के हवाले से मैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन, ज़बरदस्त। क्या हो रहा है आजकल? आजकल मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ मज़ा आ रहा है? रमज़ान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना याद करूँगी पाकिस्तान को, बट आप 1 साल घर से दूर रहते हो तो आपको एहसास हो जाता है कि के ऑल ऑफ द स्टफ दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन What were you missing most? द फूड। आई वाज मिसिंग द फूड, सो आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा হ্যাঁ, खाना हो আমাদের सकता এরকম মনে হয়। है एंड আমাদেরও বাংলাদেশি ফুড বাংলাদেশিদের কাছে বেস্ট লাগে। আমি ইন্ডিয়া ট্যুর করেছি, তো আমার কাছে খুবই বেমজা লাগছে, আর মিডল ইস্টের খাবার তো আরো বেশি বেমজা। ও ঠিক আছে, ওর ওর হিসাবে ওর পাকিস্তানি খাবারই ভালো লাগবে, আর আমাদের আমাদের খাবার ভালো লাগবে। उसकी सही मायनों में मुझे कदर आ गई है। लाइक there's a lot of variety in সত্য Bangladesh এটা। also, but पाकिस्तान वाला फ्लेवर कहीं भी नहीं है। क्यों? जैसे कि? I think biryani to begin with, I live and die for biryani. You wake me up आधी रात को and you offer me biryani, I'll have it. এই মেয়ে কি বাংলাদেশের কাচ্চি খায় নাই না? দেখি কাচ্চির কথা উল্লেখ করে নাকি। I love it to the extent कि मुझे लगता है अगर बिरयानी को ना बोलो तो गुनाह है। হ্যাঁ, That's how much I love it. বিরিয়ানি কি নাকি না করলে এটা গোনা। ঠিক। Even though I'm not a chai person, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, but good chai only in Karachi. Only in Karachi. Good biryani only in Karachi. Only पाकिस्तान दूध में भी चा only in इन ओनली Karachi. इन बांग्लादेश। हाँ, ये तो बिरयानी तो और कहीं की नहीं है। बिरयानी तो और कहीं की और भी नहीं कहीं की है। नहीं अब है। वो अलग बात है कि कहते हैं कि ज़ाहिर है दिल्ली से आई है, हिस्टोरिकली देखें तो
ये दिल्ली और बाकी जगहों से मैं जाऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि कैसी है वहाँ की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 75 साल में कराची में इतनी ज़्यादा बिरयानी इवॉल्व हो गई है ना, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का टेस्ट होगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे सो बेहतर क्या ही हो सकता है? बात ही खत्म। इससे बेहतर क्या हो सकता है? काफ़ी सारे इंडियंस इस बात का बुरा আরে मानते हैं कि नहीं বাংলাদেশের यार খাবার নিয়ে हैदराबाद में কথা अच्छी है, See, বলেন। as लखनऊ per में my अच्छी है, experience, I सब haven't been to India. I would love to go to India and try इंशाल्लाह, their food. इंशाल्लाह। I have family there, but I still haven't been. But as far as my experience says, Pakistan की कराची की बिरयानी. हुँ, तुम्हारी फैमिली कहाँ से है इंडिया में? Not directly. My parents were born and brought up in Pakistan, but मेरी अम्मी की साइड ऑफ द फैमिली दिल्ली वाले कहलाते हैं एंड मेरे अब्बू की साइड ऑफ द फैमिली और মানে मोस्टली फ्रॉम हैदराबाद ইন্ডিয়া बड़ौदा পাকিস্তান মিক্সড আছে। বলতেছি ইন্ডিয়া পাকিস্তান মিক্স, তার দাদার বাড়ি ইন্ডিয়া থেকে, মার বাড়ি পাকিস্তান থেকে। side. I never really met any of them because we never got to go to India, but that's where they're from. लेकिन अब ইন্ডিয়া तो যাইতেও পারবে না, পাকিস্তানি পাসপোর্ট ওলাতে ইন্ডিয়ায় ঢুকতে দেয় না। व्हाट्सएप आ गया ना, तो थोड़े Hmm. बहुत लोग जो हैं, जो कॉन्टैक्ट में रह गए थे, Hmm. वो फिर कॉन्टैक्ट में रह गए हैं अब फ़िलहाल। Hmm. अदरवाइज़ इससे पहले जितने भी ताल्लुकात थे ना, वो ख़त-ओ-किताबत होती थी हाँ, एक ज़माने में। थोड़ा बहुत कांटेक्ट आप फिर भी कर पाते हो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्रोइंग अप आई हैव बीन क्लोजर टू माय मॉम साइड ऑफ द फैमिली हुँ, तो even though I have first cousins in India but I don't really know them much. हाँ, उसका रीज़न ये है हाँ, कि इतना उस वक़्त दूर सोशल मीडिया था आना ही नहीं। जाना भी नहीं हो पाया कभी हाँ, तो कोई ताल्लुक ही नहीं बना. ताल्लुकात माँद पड़ गए। हाँ. ज़बरदस्त। इससे पहले मुझे बताओ कि তালুকাত মানে হলো যোগাযোগ। बांग्लादेश जाने से पहले कराची में तुम क्या करती थी? अच्छा, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन. मैंने আমি अपना আপনাকে ভিডিও শুতে যেটা বলছিলাম, সে ফ্যাশন ডিজাইনার, সে বাংলাদেশ কোনো একটা কোম্পানি থেকে ডাক পেয়েছে, সেটার জন্য সে জব করতে গেছে ওই বাংলাদেশে, জব করতে আসছে বাংলাদেশে। তো সেই কাহিনী নিয়েই তাই পুরো পডকাস্টটা। बैचलर्स किया है फैशन डिज़ाइन में PIFT लाहौर से. उसके बाद आई केम बैक टू कराची. आई वाज वर्किंग फॉर अलकरम. आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 9 months. देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सना सफीनास. आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years. फिर आई स्विच टू खाड़ी. मैं 3 साल फिर मैं खाड़ी में काम कर रही थी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम. ठीक है, ओके। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करने क्यों? में. ইনফরমেশন দিই আপনাদেরকে, খাদি যেটা বলছে ওইটা হলো বাংলাদেশের আড়ং, মানে পাকিস্তানের আড়ং। বাংলাদেশে যেমন আড়ং চলে, সেরকম পাকিস্তানে এই খাদি চলে। এবং বাংলাদেশে যত পাকিস্তানি ড্রেস আসে, সেল হয়, পাকিস্তানি ড্রেস এগুলো সবই খাদির। बिकॉज कोई भी एक दिन जो बस मोनोटनी नहीं थी. Every day was different because there is so much that happens there, and 99% are women. And the fun part is कि जितना ये कहा जाता है ना कि औरतें साथ में काम करेंगी तो चिक चिक होगी, ये होगा वो होगा, it wasn't পাকিস্তান কিনা কথা বলো, ভিডিওটা একটু সামনে আগায় দিই। like that. It was great. I made some really वो लोग ना ढूंढ रहे हैं. ओह! तो अब मैं यहाँ पे गुजरा है. I'm ज़बरदस्त, still in touch with a ज़बरदस्त। lot of people. फिर एक दिन मेरी एक दोस्त कहीं और जगह she এটা works মনে হয় বাংলাদেশে যখন তার ইনভাইটেশন আসছে তখন থেকে। करम. शी मैसेज्ड मी एंड शी सेड कि अगर किसी को जानती हो जो कि रिलोकेट करने में इंटरेस्टेड हो और कोई फैशन डिज़ाइनर हो तो बांग्लादेश में देयर इज़ अ फर्म, वो लोग ना ढूंढ रहे हैं. ओह! तो अब मैं जिस तरह की हूँ बाय नेचर, मुझे होता है कि कोई भी नई चीज़ दिखे ना कूद जाओ करके देख लो क्या होता है. ये बहुत बड़ी बात है। इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर मी. कुछ भी नया. ठीक है, मैंने कहा मैं अपनी सीवी दे दूँ. तो कहती है हाँ व्हाई नॉट, ट्राई कर लो. एंड मैंने अपना सीवी दिया एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड अप्लाइड फॉर इट. इंटरव्यू हुआ, उनसे बातचीत हुई, उन्हें कहाँ पसंद इंटरव्यू हुआ? आया. Zoom? इट वाज ऑनलाइन. ओके। इट वाज ऑल Zoom. ऑनलाइन एंड জুমে হয়েছে, they were like জুম ছাড়া আর ठीक है কিসে आ जाओ. হবে। I was like ठीक है. एंड मैंने बिल्कुल आंखें बंद करके छलांग लगाई थी लिटरली. हुँ, आई डिड नॉट नो कब देम. की बात है? ये है 2022. হ্যাঁ होल्ड ऑन. लास्ट ईयर। अभी मैं अभी कौन सा साल चला 23 या? 2021 का एंड. ओके। হ্যাঁ, Around আমি আপনাকে যেটা October, বলছিলাম, अराउंड ও अक्टूबर. 2023-এর हमने कहा ठीक है. 2023 সালে But যে I was told कि ঈদের মনে হয় আসছে অনুষ্ঠানে, আর পুরো স্টোরিটা 2022 সালকে নিয়ে হবে।
आपके ना वीज़ा में टाइम लगेगा तो आप वीसा अभी वेट करना, अभी रिज़ाइन वगैरह मत करना। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। मैंने बस छलांग लगाती थी, ना मैं वहाँ किसी को जानती थी, ना मैं इनको ज़्यादा अच्छे से जानती थी। आई जस्ट वांटेड एन एडवेंचर एंड फिर हमने एडवेंचर इन बांग्लादेश, इंटरेस्टिंग। एडवेंचर एडवेंचर इन एनीवेयर। बांग्लादेश। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं दानियल बांग्लादेश भाई, जाने का सोचूँगी भी, बिकॉज़ क्योंकि दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज़ प्लेसेस। हमारे यहाँ एक थॉट ये है ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सिमिलर, ये बंदे को वेकेशन पे भी जाना। মেয়ে বুঝে নাই। এই ড্যানিয়েলটা খোঁচা দিতে চাইছিল মেয়েটাকে যে কিছু বের করা যায় নাকি, যে বাংলাদেশকে নিয়ে একটু খোঁচা দিয়ে। এক্সপ্রেশনটা দেখছেন, এক্সপ্রেশনটা দেখেই বোঝা যায় যে ও কি চাইছিল। मैं तो यार यूरोप जाओ, या बांग्लादेश सोच ही नहीं सकता इंसान। हमारे यहाँ হ্যাঁ, দেখেন লোকটারে, দেখি মেয়েটা এই ট্র্যাপে পা দেয় নাকি। অ্যাকচুয়ালি আমার খুব ইচ্ছা জানা আসলে তার, সে মেয়েটা আসলে কি এক্সপিরিয়েন্স করছে। तो ये सोच रहे हैं कि यार बांग्लादेश, लेकिन अब बांग्लादेश जो है ना वो बांग्लादेश हो गया, Yeah. विच इज़ गुड, विच इज़ अमेजिंग, और उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बिल्कुल। अब मुझे This बताओ is कि the जो वीज़ा Bangladesh, लगवाया है उसका मैं प्रोसेस थोड़ा सा समझना দি বাংলাদেশ। चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ जी। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी आई रियली वांट टू गो टू बांग्लादेश बाय द वे, ठीक है, जस्ट जाने के लिए, देखने के लिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री You are का welcome, आपको brother. समझ आएगा, Welcome जो to बातें यहाँ पर Bangladesh. कर रहे थे वहाँ You जाकर are थोड़ा most फैक्ट welcome चेक to भी क्लियर होगा Bangladesh. हाँ। कि यार हम लोग यहाँ बात कर रहे होते तो वहाँ सच क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। देन उनके कल्चर के बारे में, हमारा एक ही रीजन है तो आई रियली वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट देम, सीधी सी बात है। तो ढाका जाने का मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मुझे लगता है कि शायद विजिट वीज़ा अभी खुला नहीं है नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। So the thing is कि if you are applying through a company, ভিজিট ভিসা সম্ভবত বন্ধ। আমি চেষ্টা করব জানার, বাট আজ যতটুকু জানি পাকিস্তানের জন্য আপাতত বন্ধ আছে। আসলে অফিসিয়ালি তো বন্ধ বলা নাই, যে বাংলাদেশ যে এমবেসি আছে পাকিস্তানে সেটা অ্যাক্টিভ নয়, আমি যতটুকু জানি। বাট দেখি এই মেয়ে কি বলে। মেয়েটার নামও তো কিরকম জানো, কেহকেসান, কেহকেশান। अगर आपको वहाँ से जॉब मिली है, अब ढाका में बहुत पाकिस्तानी है, ইয়েস। बिकॉज पाकिस्तान से बहुत लोग हायर करते हैं, स्पेशली इन द टेक्सटाइल আচ্ছা, আমরা যদি কেউ মনে করি বিহারিরা পাকিস্তানি, আসলে বিহারিরা কিন্তু পাকিস্তানি না, ওরা ইন্ডিয়ান বিহারি, ইন্ডিয়ান বিহারি মুসলিম মেইনলি। पाकिस्तान का टेक्सटाइल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश का टेक्सटाइल्स इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। वो लोग एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं। आई डोंट हैव नंबर्स, सो आई कांट टेल हु इज़ फर्दर अहेड, बट वन थिंग इज़ अ फैक्ट कि वहाँ के लोगों को यहाँ के टेक्सटाइल्स का एहसास है कि हमारा टेक्सटाइल एंड फैशन बहुत अच्छा है, हमारे पास कपड़ा अच्छा है, हमारा स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली स्किल तजुर्बा। सेट के लिए মেয়েটার ড্রেসটাও সুন্দর, ফ্যাশন ডিজাইনার তো একদম বুঝে শুনে ড্রেস পরে আসছে, আসলে সুন্দর। हाँ, जो तजुर्बा। फैशन एंड टेक्सटाइल का स्किल सेट है ना, वो पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड बांग्लादेश को एहसास है इस बात का। পাকিস্তান কিন্তু তুলা উৎপন্ন করে, এবং বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে তুলা বাংলাদেশে কিনে এনে কাপড় বানায়, এটা এক্সপোর্ট করে। और वो पाकिस्तानी इसको इसीलिए हायर करते हैं। হুম, एक एस्थेटिक भी होता है जो कि पाकिस्तान का काफ़ी এর জন্য strong है। হায়ার করছে। और मुझे इसका मज़ीद एहसास वहाँ जाकर हुआ है। यहाँ तो अपने में ही होता है, अपनी चीज़ की कदर तभी आती है जब आप उससे दूर जाते हो। बेशक बेशक। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट का सीन बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टावल्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। पर जब आप लोकल में आते हो ना, तो देयर आर्ट टू मैनी ब्रांड्स लोकल जो कि पाकिस्तान के लेवल की चीज़। আরং যায় নাই, তবে আসলে আরং অনেক মনোটোনাস ডিজাইন বানায়, বিশেষ করে মেয়েদের থেকেই শুনছি। আমি তো আরঙে যাই না, ছেলেদের জন্য তো আরং আর সেরকম নাইও। আগে আরঙে খুব ভালো ভালো পাঞ্জাবি পাওয়া যেত, এখন আর এরকম পাওয়া যায় না। দেখি ওর কি এক্সপিরিয়েন্স। अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली गैप है जो कि बहुत आसानी से फिल हो सकता है, बहुत बड़ा गैप है, और वो पीपल आर लुकिंग इनटू फिलिंग दैट गैप, जो कि शायद पाकिस्तान में 15 साल पहले था। और ब्रांड्स लाइक सना सफिनाज एंड खादी, एथनिक रिसेंटली फॉर इंस्टेंस, ये सब जो उभर के आए इन हैं। वेस्टर्न ब्रांड्स में आउटफिटर्स भी हैं, एंड देन हाँ, फ्यूरर, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे break ब्रांड्स out। एकदम से ऊपर आए हैं, एंड दे आर टेकिंग ओवर द और बहुत अच्छी वर्ल्ड, बात है, बहुत एंड अच्छी दे आर बात अमेजिंग। अच्छी मैंने बात। कभी नहीं सोचा था, मैं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान आके शॉपिंग करूं। खाड़ी की बड़ी पिछले- डिमांड है यार बाहर, बहुत साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तानी Khadi ब्रांड्स has की revamped like crazy in the last few years, and
it has taken over the world. Like मैं यार कभी नहीं सोच सकती मैं कमीज शलवारें खरीदूंगी, मैं पहनती भी नहीं थी इतनी, अब मुझे ব্যাকগ্রাউন্ড अच्छा আওয়াজ, लगने लगा कमीज शलवारें पहनना because it's ओ fun. ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক আওয়াজ হচ্ছে আমাদের ভিডিওতে। হোয়াট এভার, যে ব্র্যান্ডগুলো বললো শুনে ভালো লাগলো, পাকিস্তানের এরকম ব্র্যান্ড আছে। আর এটা সত্যি পাকিস্তানি ড্রেসগুলো অনেক সুন্দর হয় আর এর জন্যই এত বেশি চলে। দেখা যায় যে বাংলাদেশে কম, ফেসবুকে যদি আপনি মেয়েদের ড্রেস বা কোনো পেজ খুঁজেন ড্রেসের, 80% পাকিস্তানি ড্রেসওয়ালা। এবং আপনি দেখবেন একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজের প্রত্যেকটা ক্যাটালগ থেকে শুরু করে ছবি মিল, এভরিথিং ইজ মিল। এবং এটা যদি আপনি একটু পাকিস্তান গুগলে সার্চ দেন দেখবেন পাকিস্তানি ওয়েবসাইটগুলোতে এগুলাই আছে। ও যে মেন খাজি বলেন যাদের কথা বললো, প্রত্যেকের ওয়েবসাইটে সেই সেই ছবিগুলাই আছে। ছবি চেঞ্জ করার কষ্টটাও করে না, বাট সেই সেল হয়। शॉपिंग फॉर इट। पहले सिर्फ अम्माएं लेती थी, बाजियां लेती थी, बाजियों से मुराद पीपल हु आर अ लिटिल लाइक 30+ कह लो, बैंक्स में काम कर रहे हैं, एंड यू नो आपको अपने एटमोसफेयर के हिसाब से रहना, आप फैशनेबल होने के लिए कमीज शलवार नहीं पहनते थे। फैशनेबल होने के लिए आपको वेस्टर्न क्लोथिंग करनी पड़ती या थी। आई मीन मोस्टली यस। अब इस तरह के अब brands are looking into that. For khadi, for instance, I wear a lot of khadi. I'm wearing khadi right now ओके because it's ये young, it's fun. हाँ I আমার know I will look my age when I আমার wear it. প্রশংসা করতে দেরি নেই। মেয়ে মাত্র কি বলছে, ও জানে ওর এজ কত এবং ওর এই অনুসারে ওকে ড্রেস পরতে হবে। সো ওইরকম ড্রেসই সে পরে আসছে। না আসলে সুন্দর ড্রেসটা। And they have made it very cost friendly, pocket friendly. तुमने काम किया हुआ है, इसी वजह से तुम्हें इतनी नॉलेज है इसकी। लेकिन बाकी भी ब्रांड्स हैं जो कि इसी हाँ, मैं तरह से बाकी काम ब्रांड कर से रहे भी हैं। लेती हूँ, आई ऐसा थिंक नहीं है। और कौन से ब्रांड्स हैं? ईगो, एथनिक के Ethnic. आज ही I was at the mall during the day. हाँ, Amazing stuff, but not very pocket friendly. Compared to ethnic, I bought like 10 more clothes at Khadi. মেয়েটা বেশিরভাগ সময় ইংলিশে কথা বলছে, এর জন্য আসলে ট্রান্সলেট করতেছি না। বাট আই থিঙ্ক আপনারা কম বেশি সবাই বুঝতে পারতেছেন, খুব বেশি কঠিন উর্দু বা খুব বেশি কঠিন ইংলিশও বলতেছে না। Alkaram bhi hai, but I'll be very honest, Khadi beats it all. Beats it all. I'm going to say that again. Khadi beats it all. परफेक्ट, जबरदस्त। अब मुझे बताओ कि कितना टाइम लगा ये बांग्लादेश के पूरे प्रोसेस में? Okay. क्योंकि So मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आसान है नहीं, बांग्लादेश का वीज़ा? जी पहले बात तो डिपेंड करता है कि आप का रेफरेंस किसके थ्रू जा रहा है जब वीज़ा अप्लाई करें। जिस तरह से इंडिया का होता है, मेरे एक्सपीरियंस में एटलीस्ट वैसा रहा है। कंपनी टू कंपनी भी टाइमिंग डिफर करती है। अब मैं जिस कंपनी में जा रही थी, उनका जो प्रोसेस हुआ, उनकी तरफ से जो भी चीज़ें हो रही थी, इट टुक अ गुड 6 मंथ्स। 6 महीने बाद मेरा वीज़ा आया। 6 और महीने बाद। आपका वीज़ा 6 মাস। আমি শুনছিলাম যে পাকিস্তানিদের, যারা পাকিস্তানি পাসপোর্ট হোল্ডার বাংলাদেশে ভিসা পাইতে তাদের সমস্যা হয়, বাট এবার দেখতেছি মেয়ের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে। সো দেখি, চলেন আমরা দেখি আর কি কি হয় সামনে। ওর 6 মাস লাগছিল ভিসা পাইতে অ্যাপ্লাই করার পরে, এবং এটাও কোম্পানির থ্রুতে অ্যাপ্লাই করেছে, মানে কোনো ভিজিটিং না বা কোনো আননোন না, মানে কোম্পানি তাকে যে এমপ্লয় করছে সেটার জন্য সে অ্যাপ্লাই করেছে, তাও 6 মাস লাগছে। ইটস এ ভেরি বিগ টাইম। आता है, उसके दौरान आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो। बांग्लादेश में काम थोड़ा स्लो होता है इन जनरल। पीपल आर लेड बैक, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में काफ़ी स्लो चलता है। तो आई वेटेड फॉर अ गुड 6 मंथ्स। সত্যকে अक्टूबर সত্য नवंबर হিসেবেই में वी নেই, हैड এটা নিয়ে আর अप्लाइड। ये तो কিছু पूरे না रीजन का বলি। ही मसला है हमारे, है ना? इंडिया, कंपेयर पाकिस्तान, टू बांग्लादेश। पाकिस्तान, कंपेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश इज स्लोअर, हमसे भी ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा। व्हिच वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। आई वाज लाइक यार इतना स्लो क्यों हो रहा है सब, बिकॉज हमें अब एक आदत हो गई ना, थिंग्स आर रनिंग, या यस। कि अच्छा यार ये चीज़ आई है, करो आगे बढ़ाओ। बहुत लंबा हो गया था, और ऑनेस्टली मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि यार शायद कोई स्कैम हो गया मेरे साथ, और ये तो नहीं हो रहा। ও मैंने মেয়ে चलो ভাব ठीक है, एक মেয়ে चीज़ आई कि मैंने ভাবতেছে ওর সাথে স্ক্যাম হয়ে ट्राई গেছে। की, नहीं আল্লাহ। हुआ, मजाक था। बट फिर अक्टूबर से अप्लाई किया हुआ, मुझे मई में वीज़ा आया है, एंड आई लेफ्ट ऑन May 10th लास्ट ईयर। अब अब जब बांग्लादेश जाती जब हैं वीज़ा तो आया 3 महीने का आया। बस 3 बाय द टाइम आई 3 वेंट মাসের देयर, जून ভিসা। में मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। हमें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था। अब एक्सटेंशन का क्या सीन होता है, 1 महीने में आ गए ना, तो भी अगर May 10th को आप आए थे ना बांग्लादेश, May 10th ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक आपको एक्सटेंशन मिलेगी। हमें एक्सटेंशन रिसीव होकर आई है तकरीबन 10 महीने के बाद।
मार्च में, फरवरी के एंड में, और वो मेरी 10th को एक्सपायर हो जाएगी। ও और ভিসা मैं অ্যাপ্লাই করে আসলে ভিসা অ্যাপ্লাই করে ভিসাটা পেতে পেতে ও বলছে মে 10 তারিখে অ্যাপ্লাই করলে ভিসাটার মেয়াদ এর পরের পরের বছরে মে 10 তারিখে শেষ হয়ে যাবে, মানে 1 বছর পাবা। তো ওর ওই মে 10 তারিখের ভিসা ও পাইতে পাইতে ওর ফেব্রুয়ারি হয়ে গেছে, তো সেই জন্য 3 মাস পাইছে, বুঝতে পারছি। फिर से ये तो जाके अप्लाई बहुत বাংলাদেশের ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো। তো সেদিন একটা মিমস দেখতেছিলাম, একজন ড্রাইভিং লাইসেন্স পাইছে কিন্তু সে যেদিন হাতে পাইছে তার আগেই তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশি সম্ভব। लेट हो रहा है ये तो। हाँ, and during that time you cannot leave the country because you can't enter it again. Yes. Oh. So that is a problem. I lost a few family members during that time, and I could not come visit because of this issue. तो अब हम basically फंस जाते हैं. But I've heard कि पहले extension में इतना time लगता है, जो कि very strange. But second वाला आपका फिर भी 2 से 4 फिर महीने भी में बहुत लग ज्यादा जाता है. 10 महीने खैर फिर भी बहुत ज़्यादा है कहीं हाँ. के लिए भी। और आई थिंक बहुत सारे मसले जो है ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के सेम है, ठीक है। और ये अब पता मसला है है मसला ज़्यादा यहाँ तब आता है जब there is no one to tell you कि this is how things happen. Yes. Because काफ़ी जगहों पे हमें ऐसा लग रहा था कि यार हो क्या रहा है, लाइक क्या এটা हमारे ওর ক্ষেত্রে, এটা আমাদের ক্ষেত্রেও হয়। আমরা যখন কোনো কিছু করতে যাই আমাদের এত কম ইনফরমেশন থাকে, আর বিশেষ করে গভর্নমেন্ট ইনফরমেশনগুলো এত প্যাঁচানো থাকে যে আমরা সবাই কম বেশি কনফিউজ হয়ে যাই যে আসলে কি করতে হবে না করতে হবে, এবং সেই করতে গিয়েই তো আমরা দালালের হাতে গিয়ে খপ্পরে পড়ি সহজ করে কাজটা করানোর জন্য, নাহলে দালাল কে নেয়। साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या ऐसा ही होता है, तो इसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस की थी. आई अंडरस्टैंड। Yeah. अच्छा मुझे बताओ कि जब बांग्लादेश गई पहला शुरू के दिन कैसे गुजरे, क्या डिफरेंस तुम्हें दिखा बांग्लादेश और এখানে ভিডিওটা আমরা এখানেই পজ করলাম। আসলে কথার ভিতর ঢুকতেছে, আমি এত লম্বা করতে চাচ্ছি না। তো আশা করবো আপনারা আমার সেকেন্ড পার্ট দেখবেন, এবং এখানে আসলে কোনো এরকম মতামত করে উঠতে পারে নাই। মেইনলি তার বাংলাদেশে আসার কারণটা সে ব্যাখ্যা করলো, কি সে ডিজাইনার হয়ে বাংলাদেশে আসছে, ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে, এবং সে পাকিস্তানের একটা টপ ব্র্যান্ডে অলরেডি কাজ করতো। আর যতটুকু বুঝলাম যে সে বাংলাদেশে যে আসার পথে যে সে পাসপোর্ট জনিত যে সমস্যাগুলো পড়লো সেগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করেছে, এবং আমরাও কম বেশি জানি। বাট আমি স্টাডি করার পর বেশ কিছু জানছি যে পাকিস্তানের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যায় ভিসা পাওয়াটা। তো সেই জিনিসটা এক্সপিরিয়েন্স করলো। আই থিঙ্ক সামনে আরো অনেক ভালো কিছু আসবে। যতটুকু বুঝলাম মেয়েটা যে শুধুই পজিটিভ বলবে, ভাষায় ফেলাবে বাংলাদেশি প্রশংসা করে, এমনটা কিছুই হতে যাচ্ছে না। তো এখানে ভালো কিছু থাকবে, আশা করবো সেকেন্ড পার্টটা দেখবেন, এবং সেকেন্ড পার্টটা এইটা যেদিন আপলোড হবে তো 2 দিনের মধ্যেই আসবে। সো ওয়েলকাম, সো থ্যাংক ইউ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।